हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सबका डिफेंस अपडेट पे, इंडियाज नंबर 1 डिफेंस चैनल। सो द हेडलाइंस फॉर टुडेज आर Beirut explosion killed 157 people and injured 4,000 plus people. China is expanding large part of Tajikistan. New tick-borne virus named novel Bunia virus spreads in China. India stood second largest importer of arms in 2019. IAF officer accused of friendly fire seek to stop court-martial. Terrorists killed 2 BJP sarpanch in Kashmir Valley in a week. Boeing presented India its upgraded F-15X twin-engine jet. Upgraded Tejas touted as a real game changer. India needs 4 to 6 satellites for tracking Chinese military activities. So let's begin. बीरत में 4 अगस्त को एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, वन आफ्टर अनदर, एंड ये मेनली हुआ ड्यू टू दी स्टोरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन अ वेयर हाउस इन बीरट पोर्ट. बीरट इज द कैपिटल ऑफ लेबनन एंड एक्चुअली ये अमोनियम क्लोराइड 2000 ये अमोनियम नाइट्रेट 2012 से स्टोर था बीरट के पोर्ट में. जब बीरट ने एक शिप को कैप्चर किया था एंड अरेस्ट किया था जब वो इलीगली अमोनियम नाइट्रेट को ट्रांसफर कर रहा था थ्रू बीरट पोर्ट. सो ड्यू टू दिस अमोनियम नाइट्रेट 2 huge blasts happened in Beirut and the minister of Beirut had compared this with the bomb blast of Hiroshima. Second is China is demanding large part of Tajikistan. चाइना ने अराउंड 28,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ताजिकिस्तान का डिमांड किया है, जिसमें से अराउंड 1200 किलोमीटर ताजिकिस्तान ने ऑलरेडी सीज कर चुका है चाइना को. जैसे आप देख सकते हैं, आपको जो येलो पार्ट विद ग्रीन लाइन दिख रहा है, एक आपको लेफ्ट टॉप पे एंड एक आपको सेंटर पे, ये पार्ट ऑलरेडी ताजिकिस्तान ने चाइना को सीज कर दिया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना स्टिल pressurizing Tajikistan to provide the large part, which is around half of the entire Tajikistan. And due to pressure of China, Tajikistan को कुछ Chinese soldiers भी हार्बर करने पड़ रहे हैं अपने लैंड पे, and that too free of cost. So these are massive development happening in Middle East. New tick-borne virus novel Bunia virus spread in China. It himself claimed that it is contagious and can transmit human to human. This virus is initially spreaded by tick insects, but there is very low chances of its spread globally, as entire world में international travel restricted है और people भी mask safety and other safety measures अपना रहे हैं. Now, when come to next, India stood second largest importer of arms globally in 2019, and ये mainly हुआ because delay in deliveries of weapons. India खुद के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने में फोकस कर रहा है और नई डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी में इट हैज़ एम टू एक्सपोर्ट एज वेल. सो in some reasons say India came down to second place, and it's a positive sign, and this will help India in becoming Atmanirbhar in defense sector definitely. Two IAF officer accused of Budgam friendly fire seek to stop court martial. Indian Air Force के 2 ऑफिसर्स कोर्ट मार्शल फेस कर रहे हैं for their alleged role in an incident of friendly fire जिसमें एक Mi-17 चॉपर को शॉट डाउन किया था on February 27, 2019, a day after Balakot air strike. ये दोनों ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल को अप्रोच किए हैं to stop proceedings and grant them access to the court of inquiry report. Usually, court of inquiry report शेयर की जाती है accused के साथ, but here, however, a special clause has been invoked to not share details on grounds of national security. Terrorists killed one more BJP sarpanch in Raleigh. On Thursday morning,
Sajjad Khande, a BJP sarpanch, was hit from point-blank range by terrorists outside his residence in Kazigund's area of South Kashmir. ये इस वीक का दूसरा सिमिलर इंसिडेंट है। 2 दिन पहले ही एक और बीजेपी सरपंच आरिफ अहमद को टेररिस्ट ने मार दिया था। बट पाकिस्तान के ये पेट डॉग की ये कावर्ड एक्ट हमें डराने में कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, एंड इट विल फर्दर स्ट्रेंथन आवर रिजॉल्व टू वर्क फॉर डेवलपमेंट इन कश्मीर वैली। Recently, Boeing presented India its newly upgraded F-50X twin-engine multi-role fighters for the Indian Air Force. ये फाइटर जेट 50 years पहले लॉन्च हुआ था, बट ये कंटिन्यूसली अपग्रेड हुआ है टू द करेंट एक्सपोर्ट वेरिएंट ऑफ मॉडल ईगल। ये यूएस के एयर नेशनल गार्ड स्क्वाड्रन स्पेस सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है एट द प्रेजेंट। सो नेक्स्ट इज upgraded Tejas fighter touted as a real game changer. Aircraft Research and Design Center, जो कि हल का एक विंग है, उसने LCA की न्यू वेरिएंट तेजस MK1A का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। If all sticks to the current timelines, then the integration of new system will begin early next year. और हल के अकॉर्डिंग उनके पास इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 2022 से 2023 के बीच आ जाएगी। हल को एटलीस्ट 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर मिलने का उम्मीद है इंडियन एयरफोर्स से। सो नेक्स्ट एक मैसिव डिस्कवरी, एक मैसिव डेवलपमेंट हुआ है जिसमें इंडिया नीड्स एटलीस्ट 4 to 6 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स फॉर ट्रैकिंग चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटीज। अफेक्टिव विजिल ना होने के कारण आर्मी के रेस्पॉन्स में थोड़ी देरी हो रही है टू काउंटर चाइनीज डिप्लॉयमेंट। रिसेंटली चाइना ने 40,000 ट्रूप्स विथ हैवी वेपन्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ डिप्लॉय किया है। सो टू कीप चेक एंड मेक इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट अलोंग द 4,000 किलोमीटर LAC, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज फील दिस रिक्वायरमेंट। पॉजिटिव बात यह है कि हमने कुछ इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट्स नाविक के अंदर ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं स्पेस में, और नेवी का जो डेडिकेटेड सैटेलाइट है GSAT-17 वो भी इसमें इंडिया की मदद कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट वाज द नेम ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक? प्लीज आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस पेज को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, and this will definitely help you in all the defense examinations and SSB as well. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.